I'm going to speak something for the students who is doing his graduation in English or who has already completed his graduation in English or who has already completed his master in English. Actually, what happens that I am going to guide to you. Actually, what happens normally, not all the times, but in maximum times, it is seen, especially in Bihar, Jharkhand, and these tribes of Hindi belt areas or even all over India, that students, maximum number of the students say that I am a graduate in English, I am a master of art in English. But if the question, if he is asked to express something about the subject, about the literatures, about the English, and he is asked to express himself on any topics like Indian polity, any simple topics, simple matters, like tell me something few words on the rural systems, municipal corporation, or tell the function of the deputy commissioner, tell the function of the superintendent of police, or what is the condition of the Naxalites in India, or what is the condition of the Naxalite in Jharkhand and Bihar, Chhattisgarh, Odisha, like of this. Any question will be asked, like what is red corridors, and what is the contribution of the science, what is the contribution of morality, ethics. Any types of this question is asked. Means just like if that candidate or students is taken up short interview, then what happens in number, not I am just discouraging, but I am just giving the right guidance to all of the students, and you guide students. Because our motto People Welfare Foundation is clear, to make the student success and to guide, and the success will come on account of the right guidelines. So I am going to guide you right guidelines. You have done your graduation, you have done your master degree along with the B.Ed, M.Ed. It is very good, very nice, and itself doing graduation in English or master in English, it is very nice things, right? But don't forget the concept of LPG, liberalization, privatization and globalization. If you forget this concept and forgetting this concept, LPG, liberalization, globalization and privatization, anything we will do, just like debating from this way, then definitely you will get on success. You want to get success, then just keep it in your mind, right? So you have done graduation English, very nice, but also along with this, first of all, you have to continue improving command over the grammar, and also you must have the command over the all types of the literatures, national literatures and also international literatures. You must have the confidence and you must have the interest on the literatures, different types of the literatures written by the Shakespeare, and different types of the world level poets and poetess, and dramas, and like of stories, poems. You must have command over this respect, and along with this, also to get success, to become a master, school master, or a master like to do a TGT, to do a TGT teacher, and to success like in NET examination, become a assistant professor or become an assistant professor or a professor, then you must have command over the subject. Along with to cracking this examination, you must have the knowledge of the GS. It means GS means history, and having the sound knowledge, good knowledge over the geography, knowledge of economics, knowledge of constitution and polity, and ability of something interview skills like body language, eye contacts, different types of the skills you must need. So along with this, and also different things in the backgrounds, a little bit you must have it, like knowledge of mathematics, knowledge of reasoning, verbal, non-verbal, and also like a sense of humor and presence of mind you must have. Then it will make you success. Only on account of doing graduation in English and master in English, it is not sufficient to success. तो कहने का मतलब मैं यही बता रहा हूं कि आप अगर इंग्लिश में ग्रेजुएशन किए हैं, आप मास्टर डिग्री किए हैं और B.Ed, M.Ed भी कर रही हैं, तो उसके साथ आप GS में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारा GS करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन और रीजनिंग को भी ठीक रखिए, बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह, वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग, और थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी डेवलप कीजिए. धीरे धीरे आपको ये भी करना होगा, ये भी करना पड़ेगा, यही कामयाबी देगा. एक कटु सत्य है, ये सिलेबस अधिकतर विद्यार्थी नहीं समझे हैं या सुन के भी नहीं समझना चाहते हैं. तो यही कारण है जो विद्यार्थी असफल होते हैं. तो खाली इंग्लिश में BA कर लेंगे और MA कर लेंगे, तो फाव गलत सलत ग्रामर आप इंग्लिश बोलेंगे तो कोई आपको अच्छा नहीं बोलने वाला है. तो इंग्लिश जरूर सीखिए. इंग्लिश के साथ बहुत सारे जो शिष्टाचार है, तहजीब है, भारत मर्यादा है, संविधान को पालन कीजिए, व्यवहार को अच्छा रखिए. बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा देखे गए हैं कि इंग्लिश सीख लिए हैं, थोड़ा बहुत गलत सलत और फां जहां तहां बोलते हैं, जो नहीं जानते हैं दिखाते हैं कि हम कितना जानते हैं. अरे इंग्लिश बोलना ही है तो उसके सामने बोलो, उसके सामने बोलिए जो इंग्लिश जानता है,
और आपसे ज्यादा जानता है, तब वो आपको गाइड करेगा, आपको जज करेगा आप कितने पानी में है, कितने औकात में है। तो कहने का मतलब है ये अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कितने कुछ भी जानते हैं, जितना भी किए, बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन अपने भविष्य के लिए वहां से स्टैंडर्ड को अपना और ऊंचा उठाइए, थोड़ा मेहनत को और बढ़ाइए और अपने पर्सनालिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए नॉलेज से, तभी आपको सक्सेस दिला सकता है। नहीं तो दिखावटी आप बीए एमए बोले इंग्लिश में किए, बहुत सारे विद्यार्थी जो करते हैं और कहीं से पूछने से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आप में वो एबिलिटी होना चाहिए कि आपका जो कमांड है, विषय वस्तु लिटरेचर सब लिटरेचर है, जो सिलेबस है, सब चीज पूरा कमांड होना चाहिए एक्सप्रेशन करने का इंग्लिश में। उसके साथ समान अध्ययन का जितने भी चीज है, करंट अफेयर्स है, उसमें भी आपको एबिलिटी होना चाहिए इंग्लिश में एक्सप्रेस करने का। तो ये क्षमता डेवलप कीजिए और ये हमारे चैनल से भी बने रहिए। विभिन्न प्रकार के नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज, ये सारा नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर नॉलेज आपको यहाँ से मिलना है और धीरे धीरे सारा नॉलेज यहाँ से इंप्रूव हो जाएगा और हाई लेवल का यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा आपको। जो बोला जा रहा है, बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दिया जा रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं जो हमारे नोट्स पढ़े हुए हैं, हमारे मार्गदर्शन में है, और हमारे कुछ विद्यार्थी भी है बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम में पहुंच गए हैं। समय आने पर सारा ये क्लियर हो जाएगा, आप लोग देख ही लेंगे आगे। तो इसका फायदा उठाएं, ये सब सारा जानकारी वगैरह मुफ्त में आपको दिया जा रहा है। यही सब बताने के लिए, जानकारी देने के लिए दिल्ली, बेंगलोर में वहां पर 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपया कोचिंग संस्थान ले रहे हैं और उस ज्ञान को हासिल करने के लिए 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया खर्चा करने पड़ रहे हैं विद्यार्थियों को, फिर भी सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। खुद हमारे संस्था, खुद मैंने ही पढ़ाई में करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया है, तभी मैं वो ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूं। ये फ्री में, खैरात में हमें ज्ञान नहीं मिला है, वर्षों का तपस्या, ये 30-40 वर्षों का कठिन तप, तपस्या, मेहनत, दिन रात मेहनत और अपने आप को संयमित रखते हुए, मर्यादा में डिसिप्लिन रखकर ये ज्ञान को हासिल किया है। और यही तरीका है जो विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे और इस प्रकार से ज्ञान हासिल करेंगे और सक्सेस करेंगे। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है आउट ऑफ बॉक्स सोचना। आज अधिकतर मतलब बोला जाए कि लगभग 100% के आसपास मतलब स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। ओबामा भी बोले थे, मुंबई आए थे, परेशान हो गए कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग से बाहर आना होगा कामयाबी के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट इंडिया में भी करना होगा। लेकिन ये हमारे भारत के लोग नहीं समझ पा रहे। एजुकेशन सिस्टम छोड़िए, आर्ट वगैरह तो छोड़ दीजिए, जो हमारा कॉमर्स, सीए वगैरह किए जा रहे हैं, बिजनेस स्टडीज वगैरह कराए जा रहे हैं, उन लोगों का भी ये स्किल डेवलप नहीं हो पाया है और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में भी ये चीज वहां पर अभी समझ नहीं पाए हैं कि आउट ऑफ बॉक्स मतलब आउट ऑफ बॉक्स ही जो है व्यक्ति को कामयाब बना सकता है, कुछ क्रिएटिव ला सकता है, कुछ यूनिकनेस ला सकता है। और इसको जो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, बहुत ही चंद व्यक्ति समझे हैं, आज वो कामयाब हुए हैं और वही कामयाब हो रहे हैं और रास्ता वही है, इसको समझना पड़ेगा। तो शॉर्ट में बोल रहे हैं, इंग्लिश किए हैं, बीए एमए अच्छी बात है, लेकिन आप उस लायक बनिए, जीएस को अच्छा कीजिए सारा और उसके बाद पूरा कमांड लाइए, तभी आपको सफलता मिलेगा। और हम यही कामना करेंगे कि आप सफल हों और कामयाब हो और सफलता प्राप्त करने के बाद मेरा मार्गदर्शन को याद रखिएगा और हमसे जरूर मिलिएगा कि अशोक सर आपके मार्गदर्शन में मैंने तैयारी किया है और आज मैं सफल हुआ हूं। और मेरा बात अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मिलके देखिए, जितने विद्यार्थी आज असफल हुए हैं सब यही इस चीज को स्ट्रॉन्ग नहीं किए हैं, आज असफल हुए हैं। और जितने विद्यार्थी असफल हो रहे हैं आज इस मतलब जो लकीर है, इस पायदान से आगे नहीं जा पाए हैं, यही सोच पे तैयारी कर रहे हैं, यही सोच पे पढ़ रहे हैं, जो आज कामयाब नहीं है, जो कि मतलब इधर उधर भटक रहे हैं या ठोकर खा रहे हैं। अब जो समझ लीजिए, मेरा उद्देश्य है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना और कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो मैं कर दिया हूं। थैंक यू। इस वीडियो बहुत सारा बोलने के लिए है, तो इस वीडियो में इतना ही। और समय अभाव के लिए ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ टाइम वी हैव टू गो टू स्टॉप हियर स्पीकिंग। That's all. Still you did not subscribe our YouTube channel, please subscribe our YouTube channel and also share to channel links other students, so that also the students can get benefit from us and they can develop their life and be success in their life. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai.